افغانستان سے جلد بازی میں انخلا غیر دانشمندانہ ہوگا، امن مذاکرات کا انعقاد چبر کے تحت نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے مضمون میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دوحہ مذاکرات سے افغانستان میں جنگ کا خاتمہ، امن کا قیام ممکن ہے۔ افغان عوام کے بعد سب سے زیادہ قیمت پاکستانی عوام نے چکائی ہے۔ طلال چودھری اسپتال سے نکل گئے، بیان ریکارڈ کرنے گئی پولیس ٹیم کو ناکامی کا سامنا۔ تحقیقاتی کمیٹی میں ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن اور ایس ایچ او تھانہ ویمن فرح بیتول شامل ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد نے 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی۔ طلال چودھری اور عائشہ رجب علی سے معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 روز میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ تنظیم سازی رات 3 بجے ہو تو آفٹر شاکس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان کا کہنا تھا کہ طلال چودھری نے ایشو کو ایجنسیوں اور مخالفین کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ بیگم صفدر نے طلال چودھری کو بچانے کے لیے ڈبلیو ٹرن لیا۔ جلیل احمد شرکپوری نے پارٹی پالیسیز کی خلاف ورزی نہیں کی۔ فضل الرحمان کا ووٹ بینک صرف 3 ڈسٹرکٹ میں ہے اور اثاثے ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں۔ نواز شریف کی تقریر کے بعد بہت سے نون لیگی رابطے میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست منافقت پر مبنی ہے۔ نواز شریف کے حالیہ بیان سے نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ مفرور ہیں، سیاست پر بھاشن نہ دیں، انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ شیخ رشید کی باتوں میں وزن ہے۔ منی لانڈرنگ کیس سلمان شہباز یکم اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف کے صاحبزادے کو دوبارہ نوٹس بھیج دیا۔ نوٹس کے مطابق سلمان کے اکاؤنٹ میں 10.5 ارب کی منتقلی سے متعلق جواب مانگا گیا۔ لوگ اپنا بندوبست کر لیں، ہم نے تجاوزات گرانی ہی گرانی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کا ہم پر دباؤ ہے۔ سندھ حکومت کے تعاون سے کراچی سرکل ریلوے کا کام شروع ہونے لگا۔ وفاق اور سندھ حکومت کی کوئی لڑائی نہیں، ہر 15 دن بعد کراچی آؤں گا۔ شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا حکومتی اجلاس مسترد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے انتخابی امور میں مداخلت کرے۔ شہباز شریف نے کہا گلگت بلتستان حساس قومی معاملہ اور کشمیر فوج سے جڑا ہوا ہے، موجودہ حکومت اسے اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ اپوزیشن نے استعفے دیے تو وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جس نے بھی 3 مارشاء اللہوں کے بعد 14 مارشاء اللہ کا سوچا وہ ملک کا دشمن ہوگا۔ جمہوریت اور قائد اعظم کے راستے پر چلانے سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع کا روس میں کثیر الملکی کیوکاز فوجی مشقوں کا معائنہ۔ پرویز خٹک نے چیف آف لاجسٹک سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر سایہ عباسی کے ہم جوانوں سے ملاقات کی۔ روسی شہر آسترخان میں جاری جنگی مشقیں گزشتہ روز اختتام پذیر ہیں۔ سیاحت کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹورزم پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ایپ کے ذریعے شہری سیاحت سے متعلقہ معلومات اور خدمات آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ 511 سیاحتی مقامات کے بارے میں تمام معلومات پنجاب ٹورزم ایپ کے ذریعے مہیا کی گئی۔ اور امریکہ میں متاثر کن مومی مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ مجسمہ موسمیاتی اثرات کی طرف توجہ دلانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں سٹی ہال کے باہر مجسمہ دادا پوتے کا ہے جو آئس کریم کھاتے ہوئے خوشگوار وقت گزار رہے ہیں۔ اس مجسمے کا پیغام نہایت واضح ہے، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مجسمہ پگھلتا جائے گا جس سے اندازہ ہوگا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹمپریچر کس قدر بڑھا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। और सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। अमन मुज़ाकरात का इनेकाद जबर के तहत नहीं किया जा सकता। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मज़मून में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दोहा मुज़ाकरात से अफ़गान जंग खात्मे के करीब है। अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन है। अफ़गान अवाम के बाद सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तानी आवाम ने चुकाई। अफ़गानिस्तान और ख़त्ते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है। पाकिस्तान ने 40 लाख मुहाजिरीन की देखभाल की ज़िम्मेदारी निभाई है। अफ़गान जंगों के बायस पाकिस्तान में असलहा और मंशियात फैली। अफ़गान हुकूमत ने तालिबान को बतौर सियासी हकीकत तस्लीम किया। उम्मीद है तालिबान भी अफ़गानिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम करेंगे। तलाल चौधरी पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद ने पुलिस की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। तलाल चौधरी और आयशा रजब अली से मामले की तहकीकात करके 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ASP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक कमेटी के सरबराह होंगे। SHO थाना मदीना टाउन और SHO थाना वीमन फरा बतूल कमेटी के मेंबर हैं। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के दरमियान पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे, फिर दोनों में लड़ाई बढ़ती चली गई। लोग अपना बंदोबस्त कर लें, हमने तजावुज़ात गिरानी ही गिरानी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि अदालत उस्मा का हम पर दबाव है। सिंध हुकूमत के तामुन से कराची सर्कुलर रेलवे का काम शुरू होने लगा। वफाक और सिंध हुकूमत की कोई लड़ाई नहीं, हर 15 दिन बाद कराची आऊँगा। हमारी तरफ से काम शुरू है। 12 किलोमीटर मुकम्मल कर लिया, हमारे पास 30 किलोमीटर है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तजावुज़ात की निशानदही की जा रही है। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो लोग बेघर हों उन्हें मुतबादल जगह फराहम की जाए। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वज़ीर आज़म का भी नया इलेक्शन होगा। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि जिसने भी 3 मार्शल्लाओं के बाद चौथे मार्शल्ला का सोचा तो वो मुल्क का दुश्मन होगा। पाकिस्तान को जमहूरियत और कायदे आज़म के रास्ते पर चलाने से ही तरक्की कर सकता है। बचा खुचा पाकिस्तान चौथे मार्शल्ला का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती का एक ही रास्ता है, वो आइन का रास्ता है। लीगी रहनुमा ने कहा कि नोटों को कबूल करना आवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया हुकूमती इजलास मुस्तरद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत करे। शहबाज शरीफ ने कहा गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कौस से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए। स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत करे। हुकूमत ने कौमी मफाद में अपोजिशन के हर ताउन की ठोकर मारी है और अपनी सियासी ड्रामाबाजी के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमती फस्ताई और आमराना रवैये को देखते हुए किसी किस्म का ताउन नहीं करने का फैसला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज 1 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया गया। FIA ने शहबाज शरीफ के साहबजादे को दोबारा नोटिस पेश किया। नोटिस के मुताबिक सुलेमान के अकाउंट में 10.5 अरब की मुंतकली से मुतल्लिक जवाब मांगा गया। नोटिस के मतन के मुताबिक पूछा गया कि रकम की मुंतकली के ज़राए क्या हैं, बताया जाए। आपको 25 सितंबर को भी तलब किया जा चुका। अगर आप दूसरी दफ़ा भी पेश ना हुए तो फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कराची के करीब मुसाफिर वैन को हादसा, 13 मुसाफिर जाम हक, 11 ज़ख्मी। हैदराबाद से कराची जाते हुए वैन नूरियाबाद के करीब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। ज़ख्मी मुसाफिर का कहना है कि वैन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा आगे जाने वाली वैन का बोनट उड़कर बदकिस्मत मुसाफिर वैन से टकराने के सबब पेश आया। मुसाफिर वैन के कच्चे में उतरने से आग भड़क उठी, जिसके सबब हलाकतों में इजाफा हुआ। वज़ीर दिफा का रूस में कसीरुल मुल्की की उकास फौजी मशकों का मुआयना। परवेज़ खटक ने चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी के हमरा पाकिस्तान और चीनी फौजी एहलकारों से मुलाकात की। रूसी शहर आसरखान में 21 सितंबर को शुरू होने वाली जंगी मशकें गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम पजीर हुई। ISPR के मुताबिक वज़ीर दफ़ा ने मशकों में शरीक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात भी की और उनकी पेशेवराना कारकर्दगी को सराहा। सियाहत का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब ने टूरिज़म पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला कहते हैं ऐप के ज़रिए शहरी सियाहत से मुतल्लिक़ मालूमात और ख़दमात ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। ऐवान वज़ीर आला में इजलास और तकरीब में वज़ीर आला ने DTS सिस्टम की ऐप का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का कहना है कि 511 सियाहती मकामात के बारे में तमाम मालूमात पंजाब टूरिज़म ऐप के ज़रिए मुहैया की जा चुकी हैं।
तंजीम साजी रात 3 बजे हो तो आफ्टर शॉक्स में हड्डियां टूटती हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान का कहना था कि तलाल चौधरी ने इशू को एजेंसियों और मुखालिफिन का रंग देने की कोशिश की। जलील अहमद शरकपुरी ने पार्टी पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं की। फजल रहमान का वोट बैंक सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में है और असासे हर डिस्ट्रिक्ट में है। पनामा इशू पर तलाल चौधरी टीवी पर आकर मुखालिफिन की माँ और बहन को बुरा भला कहते थे। तलाल चौधरी को मरियम नवाज की तरफ से शाबाशी मिलती थी। फजल रहमान के अरबों नहीं खरबों के एहसास हैं। जायदादें सामने आने पर फजल रहमान धमकियां दे रहे हैं। उनके एहसासों की तफसीलात सुनकर लोगों ने उंगलियां दांतों में दबा ली। जरदारी ने भी 4 साल पहले कहा था, किसकी हिम्मत है जो मुझ पर हाथ डाले। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में कमी का सिलसिला जारी। मज़ीद 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 6457 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मज़ीद 694 मरीज सामने आए। मुतासर अफराद की तादाद 3,10,275 हो गई। NCOC के मुताबिक सिंध हाल कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है, जहाँ केसेस की तादाद पंजाब और KP से ज़्यादा है। मसीही अलहदगी पसंदों का कब्जा, अजरबैजान और आर्मेनिया की शदीद लड़ाई। मुस्लिम इलाके नागोर्नो का सदर आरिफ तोरमाना ने सूरत हाल से निपटने के लिए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। झड़पें 27 सितंबर की सुबह से नागोर्नो काराबाख में हो रही हैं। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान झड़पों में 35 तालिबान हलाक। सूबा गजनी, जाबुल और समंगान में सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान में लड़ाई जारी। झड़पों में अफगान फौज का भी भारी नुकसान हुआ। तालिबान की मुकामी क़यादत ने इन झड़पों की तरदीद या तस्दीक नहीं की। गजनी में तालिबान जंगजुओं ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान 6 तालिबान हलाक और 5 जख्मी हुए। अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की हिलाकत की भी इतला है। बच्चे दिन में मुतअद्दिद मरतबा फ्रिज से खाने पीने की चीज़ें तलाश करते हैं, मगर ये काम कुत्ते भी करने लगे और फ्रिज से चीज़ें चुरा कर चीज़ चुराने लगा। कुत्ते ने फ्रिज से पनीर उठाया। मालिक ने इस कुत्ते की चोरी को पकड़ने के लिए फ्रिज में ही कैमरा नस्ब कर दिया। इससे कबल कुत्ते के मालिक को अपने फ्रिज से खाने पीने की अशिया के गायब होने की शिकायत थी, मगर चोर पकड़ा न जा सका। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।